नमस्ते। मेरे साथ आज डॉक्टर गोयते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर गोयते, वैसे मैं इनसे एक और आप लोगों से बातचीत करूंगा कम्युनिटी हेल्थ पे। शी इज अ प्रोफेसर इन जेएनयू एंड वेयर हमारे प्रिवेंशन पे ये बहुत काम करती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अजीब सी चीज ये लगती है कि मणिपुर में ना कोई प्रिवेंशन काम आया, और अब तो उसकी मतलब जो पेशेंट है उसकी बहुत क्रिटिकल हालत है, उसमें कोई हेल्प भी नहीं मिल रही। ऐसा नहीं हो रहा कि समवन नो वन इज अटेंडिंग दैट पेशेंट। तो मणिपुर का वी आर डूइंग अ सीरीज ऑन चैलेंजेस ऑफ 2025, चुनौती जो है 2025 की। और मुझे ऐसा लगता है मणिपुर की चुनौतियां, और सबको पता है कि क्या चुनौती है, लेकिन स्टिल आप उसको आर्टिकुलेट कर दीजिए कि पहली 2 या 3 चैलेंजेस या एजेंडा फॉर मणिपुर, सो दैट पेशेंट्स एटलीस्ट वो ठीक उसका कुछ तो ठीक हो। नहीं तो अदरवाइज पेशेंट इज इन बैड शेप। मणिपुर के लिए हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। मैं उस पर जरा एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आई जस्ट नीड अ रिएक्शन कि मणिपुर के रेफरेंस, ओनली मणिपुर, what are the challenges in 2025? Dr. Goite. Yeah. Thank you, Anandji, for inviting me on your show. And it's been always a pleasure to talk about issues when it comes to health, public health issues. क्योंकि उसी फील्ड में काफी वो ट्रेनिंग एंड देन एंगेजमेंट रहा, एंड ऑल्सो बीइंग फ्रॉम मणिपुर, और ये मणिपुर वायलेंस को लेके I mean, when I try to integrate, these two things, on the one hand, you have many issues, क्योंकि public health का health in its holistic definition, जो इसका लोगों का well-being ensured hota hai when you have a good governance, right? So good governance and good leadership ensure the health and well-being of the citizen. So these two things, public health and politics, it's something which we cannot look in isolation. And when we talk about public health, it's more about intersectoral collaboration and interdisciplinary collaboration and multidisciplinary. Abhi to we go beyond transdisciplinary. Like when we start talking about policies towards climate change, when we start talking about policy towards universal healthcare, तो उसके लिए we need structural and systemic changes or reformation. अभी if उस नजरिया से अगर मैं मणिपुर का वायलेंस ये इशू हम देखते हैं, तो health of the population is seriously violated when it comes to mental health, physical health और environmental health. और इस सारा इश्यूज को अगर मैं पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव में देखूं, शुरू में ये नैरेटिव था कि वहाँ के जो कुकी जोमी मार ग्रुप जो है वहाँ पे, और सिंपल अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं तो मणिपुर में 3 भाई है। सबसे बड़ा भाई तो मेइतेई है, फिर छोटा भाई नागा, और फिर द नॉन नागा ट्राइब जो कुकी जोमी मार। हम जो इस वायलेंस में ज्यादातर 80 to 90% जो सफर कर रहे हैं। तो इस पॉपुलेशन कंपोजिशन में जो अभी राइट नाउ जिसका हेल्थ इन ऑल सेंस वेलबींग जो अफेक्टेड बाय द वायलेंस, सो कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस is also seriously impacting the health outcome of the given population. So conflict और public health के नजरिया से violence भी as a one of the root cause of producing, ये आपका mental health issues and then trauma and then physical health issues. तो physical health issues का समझना, sometimes it's just a manifestation of your अंदर से जो trauma है, और
mental health issues है. तो physical health is something just a manifestation which we can see it outside. अंदर क्या चल रहा है? Because of your political environment, conflict कितना नुकसान पहुंचाता है to the citizen. This is something, you know, that I, as a public health professionals and public health academicians, which I try to connect, you know, the violence and its gross impact on the health outcome of the population. So we see because of the conflict, even perpetrators भी suffer कर रहे हैं, victim भी suffer कर रहे हैं, and we see the political economy situation वहाँ पे भी economy का collapse भी हो रहा है, state economy का. तो इसका हर चीज अगर हम let's say like in the topic of your discussion, Agenda 2025, what should be the way forward for the state of Manipur? So this is something, I mean, which needs a lot of discussion and deliberation when it comes to ये जो political demand and also the ongoing जो violence भी रुक ही नहीं रहा है, पूरा state machinery एक community के against चल रहा है, और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में उस स्टेट मशीनरी को ठीक करने के लिए वो काम भी नहीं हो रहा है. अब हम लोग बात करते हैं ना डबल इंजन सरकार, तो अगर वो आप डबल इंजन को अगर आप आदमी को बुलडोज करने के लिए यूज करोगे तो हु विल सर्वाइव? और आप एक कम्युनिटी, एक एथनिक कम्युनिटी को बुलडोज करोगे विद दैट डबल इंजन, तो how will that community survive, right? So Correct. despite that इतना अत्याचार होने के बाद भी अभी मैं रिसेंटली घर मणिपुर गई थी, and I went through मिजोरम. So दिल्ली से मैंने आइजोल एयरपोर्ट, फिर आइजोल से मेरा होम डिस्ट्रिक्ट विच इज चुरुचानपुर, और चुरुचानपुर में द हेडक्वार्टर इज लमका डिस्ट्रिक्ट, लमका टाउन. तो वहाँ उसके लिए हमें आइजोल का एक लेंगपुई एयरपोर्ट, सो लेंगपुई से लेके लमका तक हमें कितना 18 घंटा बाय रोड. और रोड का हालत भी ऐसा है कि आधा किलोमीटर, आई थिंक इट मस्ट बी अराउंड 380 या 75 किलोमीटर इन अप्रॉक्स, एंड उसका आधा रास्ता तो इट्स लाइक डस्टी. अभी विंटर सीजन है और मॉनसून सीजन में इट्स मडी, और अभी विंटर सीजन में इट्स डस्टी, एंड देन बहुत सारे पोर्ट होल्स, एंड यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ यू नो रिस्क in terms of कुछ भी एक्सीडेंट भी हो सकता है. So and there is no public transport, it's all private bolero or sumo ka service hai. And when it comes to public transport, the only service which is happening is helicopter, and वो भी हफ्ते में 2 दिन, और I think Monday and Friday. एंड जो मेडिकल इमरजेंसीज है उनको प्रायोरिटी देते हैं टू, बिकॉज वहां पे क्योंकि एक आपने अभी 2 साल होने वाला है, तो डेमोग्राफिकली और जोग्राफिकली डिवीजन अच्छे से हुआ है, एंड वहाँ बफर जोन में आपका सेंट्रल आर्म फोर्सेस और विलेज वॉलंटियर्स है. सो जो कुकीजोमी मार कम्युनिटी है वो इम्फाल एक्सेस बिल्कुल नहीं कर पाते. सो मेडिकल फैसिलिटी के लिए इधर आइजोल या नहीं तो गुवाहाटी, या जिसके पास थोड़ा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन सिटीज, क्योंकि वहाँ चुरुचानपुर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कुकीजोमी मार का कंसेंट्रेशन है, और उनका हेडक्वार्टर है इट्स कॉल्ड लमका. तो वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और अभी बिफोर द वायलेंस चुरुचानपुर मेडिकल कॉलेज करके एक मेडिकल कॉलेज शुरू किया था. तो you don't have that specialized either physicians and also in terms of the diagnostic equipments. So you see the kind of structural historical marginalization when we look it from that perspective of infrastructural development,
then suddenly you realize, क्योंकि हम लोग बड़े भाई के पास ही जाते रहते हैं ना इम्फाल में हर चीज, क्योंकि सारा कंसंट्रेशन वहीं पे है, so we keep going over there, but suddenly हमें एकदम से we have to become a nuclear family, joint family Yes. से nuclear. तो but Yes. at the same time we are not equipped, Yes. we were not given that infrastructure, and it's been many years Manipur has been a statehood, और सारा Yes. ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान्स के अंदर सारा Yes. प्रोजेक्ट डॉक्टर साहब मैं एक बीच में जस्ट एक थोड़ा मैं समझने के लिए हाँ फ्रॉम अ डिस्टेंस जो आपके करंट चीफ मिनिस्टर हैं सीएम बीरेन सिंह साहब, he is totally हाँ discredited. Even his own party people, even people who are supporting him, he is discredited. और हाँ ये लगता है कि any solution unless and until उनको हटाया जाएगा तब तक कोई solution नहीं होगा. Now why the central government is so adamant कि हम बीरेन सिंह को नहीं हटाएंगे? Come what may. नो वन इज आस्किंग कि आप किसी और को करिए, आप बीरेन सिंह को हटा के किसी और को चेंज कर दीजिए, बिकॉज बीरेन सिंह इज नॉट एक्सेप्टेबल जो जनरल उनके अपने लोगों में. मैं इस पे आई जस्ट वांट अ स्मॉल थिंग, व्हाई सो एडमेंट ऑन बीरेन सिंह? there are many speculation when it comes to why is he still being, I think उस speculation का तो I would not like to go into आई अंडरस्टैंड, क्योंकि नहीं यहाँ पे भी आवाज आती है, कोई कहता है बिजनेस इंटरेस्ट है, कोई कहता है कि लार्जर इंटरेस्ट है, वो ठीक है नहीं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है डॉक्टर गोइते, कि वहां पे जो अभी इलेक्शंस हुए 24 मतलब लोकसभा, उसमें टर्नआउट वाज मोर देन 80%. तो कोई भी मणिपुरी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज माइती और इज नागा और इज कुकी, वो सोल्यूशन चाहता है, उसने आके वोट दिया क्योंकि उसको इस डेमोक्रेसी में विश्वास है, नहीं तो 80% वोटिंग नहीं होती. ये भी एक मैनिफेस्टेशन है कि वो ठीक है आपस में बात नहीं हो रही है, लेकिन वो एवरेज मणिपुरी इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एथनिक वो अपने इसका सोल्यूशन चाहता है. एक तो मैं इस पे कहूंगा कि व्हाई व्हेन दे हैव द ओनली थिंग, उन्होंने डेमोक्रेसी में उनको वोट देने का अधिकार था, उन्होंने अधिकार प्रयोग किया. उन्होंने एमपी बनाए, एक आपके जेएनयू के जो हु इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, उसने जाके अगर वहां किया तो लोगों ने उनमें विश्वास व्यक्त किया है. तो एक तो मैं इस पे आपका एक रिएक्शन चाहूंगा, और दूसरा एक मुझे जो पता लगा कि जो आप बता रही थी ना कि गाड़ी बोलेरो और वो है, वहां पे जो जिसपे यू ट्रस्ट वो मुस्लिम कम्युनिटी है. मुस्लिम आर ट्रस्ट, मतलब वो जो ड्राइवर हैं या वो हैं, वो ज्यादातर मुस्लिम हैं, बिकॉज उनके ऊपर दोनों कम्युनिटीज का ट्रस्ट है, पर अदरवाइज दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर. मैं दोनों चीजों पे मतलब somehow you have a choice, जहां पे मुस्लिम, यहाँ पे तो हम लोग मुसलमानों को ऐसा बताया जाता है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट मुस्लिम इन दी प्लेन्स आई एम टॉकिंग, एंड स्पेशली इन द हिंदी आर्ट. तो टर्नआउट मणिपुर चाहता है सोल्यूशन, और योर ट्रस्ट, बोथ द कम्युनिटीज ट्रस्ट ऑन अ कम्युनिटी विच इज अदरवाइज, हम लोग उनको क्या क्या नहीं बोलते हैं हिंदी बेल्ट में. रिएक्शन ऑन बोथ द थिंग्स डॉक्टर गोइते. हाँ, इस चीज में एक बीरेन सिंह वाला इशू पे कि वो डिस्पाइट, जैसे अभी करेंटली ऑन द न्यूज की ऑडियो लीक उसका हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रहा है, वो ट्रूथ लैब में उसका ऑडियो का टेस्टिंग हुआ है, उसमें 93% इज फाउंड टू बी हिज दिस थिंग्स, बट अभी भी उसी 7% पे आर्गुमेंट चल रहा है कि इन द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड रिप्रेजेंटिंग मणिपुर स्टेट, तुषार मेहता टॉक्स अबाउट sorry how these things are kind of manipulated, and then this is one way of the organization who is filing a petition, the Kuki Human Rights Organization. It's a part of their demand to being separate, their separatist agenda and all those things. So I'm sorry, I have some throat issue. Carry on, no problem. So this beyond doubt ki the country is seeing that the chief minister is protected,
and that's why he continues to be on the seat despite empirical evidence when it comes to audio, to video, to many things. But that is one abhi jo recent development, audio tapes, and then the home ministry inviting for an explanation, all those talks and all those things. But the removal, which is not happening, can be one that there is another maybe person replacement unko nahi mil raha hoga within Manipur, because it's at the end of the day it's the BJP government. So there can be many inside story also, which I mean, I think I may not be the competent person to talk about Correct. it in the I form. So, and dusra, when it comes to the third population, the Muslim population, आपने ठीक कहा कि अभी जो they are the neutral person, and when it comes to business transaction, जैसे इम्फाल का कुछ प्रोडक्ट्स आपको चुरचानपुर तक पहुंचाना है और ट्रेडिंग करना है, so they are the reliable person who are interested to do that trading. Like for example, जैसे कोई मीटिंग है और कोई कॉन्फ्रेंस है, because there are in the Lamka town there are private universities or private colleges, yeah, two government colleges there. One is Lamka College and one is Churchandpur College. So, agar usme koi seminar, if you have the mainland Indians to come, they don't need to go through that process which I go through as a as an indigenous community of that region. They come till Imphal Airport. For Imphal Airport, say Churchandpur district, it's just 1.5 hour journey. So वहां पे बफर जोन में they are the one who kind of bring them there, and then वहां से then they take them inside the district. So this is the kind of arrangement which is been going on right now, and yes, they become a very important and crucial population who is kind of addressing the gap of communication between the Kuki-Zomi Mar and the Meitei community. Yes. डॉक्टर साहब, मैं आई एम अगेन रीफ्रेजिंग माय क्वेश्चन बिकॉज मैं उस पे एक आपका रिएक्शन, मेरा ये कहना है कि ठीक है आपस में बहुत दे आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स अगेंस्ट ईच अदर, but when it comes to voting, the 80%, more than 80% of Manipur voted, so they have the faith in the system, and you need someone जो दोनों को कहीं से तो, क्योंकि end of the day you have to talk, you talk today, you talk after 2 years, you talk after 20 years. वो प्रोसेस मुझे कहीं पे शुरू होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है. आई एम नॉट, मतलब डायलॉग कहीं पे शुरू नहीं हो रहा है एट एनी स्टेज. मैं उस पे आपका मतलब any Manipuri, irrespective of his ethnic background, wants that solution, which is that 80, more than 80% vote is a solid proof that सबको चाहिए कि भाई ये खत्म हो. मैं इस पे I just need a small reaction on this. Yes, talks in terms of the Meitei and the Kuki-Zomi communities के बीच में direct talk without any mediator तो शुरू नहीं हुआ है, but with the mediation from the central government, and you have the interlocutors who are talking with the armed groups and civil society जो representatives है उसके साथ भी. So the central government definitely has their mediator and their interlocutors who are talking to both the communities. But that direct interface of both the communities, बात भी चल रहा है तो अलग अलग बात कर रहा है, but एक on the table bringing the two communities together, starting a dialogue and communications, वो अभी initiate नहीं हुआ है but चल रहा है, like they are doing, they are talking, and I'm also that is happening. क्योंकि मैं जो बाहर से समझ सकता हूँ कि देखिए वो जो someone who mediates, या तो वो बहुत बड़ी पोजीशन का हो, या तो वो एट द लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हो, या ऐसा व्यक्ति हो जिसपे दोनों का विश्वास हो. क्योंकि अदरवाइज अगर वो मीडिएटर के एक पक्ष को लगेगा कि ही ओनली टॉक्स ऑफ दैट पार्टी,
वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है कि अभी तक शायद इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिला। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो सिविल सोसाइटी के हैं, दे आर गोइंग, ट्राइंग टू डू देयर बिट, कमिंग हम्म बैक। मतलब जब आज आपने उसकी बात नहीं कही है, मैं जो उस कैंप्स में गए हैं कुछ, मैं नाम भी ले रहा हूँ, डॉक्टर संदीप पांडे विजिटेड दोस कैंप्स, आई डिड अ शो फ्रॉम दोस। मतलब साल हो गए हैं, आप अपने घर को छोड़ के, राशन आता है, आप खाना बना रहे हैं, आप मतलब जो आपने मेंटल और ये सब फिजिकल और ये सब हेल्थ बोला, अपने घर से छोड़ के आप इतने दिनों तक हैं, एंड इट इज अ वेरी अनसर्टन फ्यूचर। तो वो आई डोंट नो मतलब हाउ वी आर गोइंग टू कोप अप विद दैट। आई हैव ऑनेस्टली स्पीकिंग एज एन इंडिविजुअल आई डोंट हैव एन आंसर, क्योंकि अल्टीमेटली तो इसको सुलझाना पड़ेगा। देखिए कब तक होता है। I completely agree with you, आनंद जी, क्योंकि इसमें you can imagine, I mean, we can't even imagine कि आप अपने घर से डिस्प्लेस होके रिलीफ कैंप में 2 साल होने वाला है। मई अभी मई 2025 होगा, 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। एंड दे आर नॉट एबल टू हैव देयर ओन consistent livelihood. They are not able to be relocated to a kind of place where they can rent out, अपना dignity से, self respect से कमाए खाए, that option is not there. But there are जी few of them who has a strong relatives and who could support. So many leave the relief camp. इस बार हाँ मैंने भी विजिट किया था। सो वहाँ पे कंडीशन इज डिटेरियोरेटिंग। जो स्टेट जी सपोर्ट और सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। एंड स्पेशली वुमेन, व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इश्यूज and when it comes to menstrual hygiene and privacy and all those things, there are बहुत nitty gritty of which is on daily basis violating their basic human dignity and human rights in that relief यस camp. यस। So और yeah. डॉक्टर गुड्डे, मैं मतलब आई विल जस्ट क्लोज इट, ये लोगों को समझना होगा कि Hmm. पीपल आर स्टेइंग फॉर 2 years, दे डोंट, मतलब मैं बहुत बेसिक की बात कर रहा हूँ, दे डोंट हैव देयर ओन बाथरूम्स, दे Hmm. यूज अ कम्युनिटी, दे डोंट हैव देयर ओन किचन। वो एक Hmm. कम्युनिटी किचन में जाकर उनको पता है कि इतने बजे पानी आएगा, इतना पानी आएगा, इतना ही यूज कर सकते हैं। What I am trying to say is कि we are not realizing this. People who are outside Manipur are not Hmm. realizing कि what trauma Manipur is going on, and ये आप लोग की रेजिलेंस है कि आप लोग इसको अभी तक सरवाइव किए हुए हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सरवाइव, मतलब survive in these conditions. Thank you so much, Dr. Gote, with a prayer that let us hope that something comes out of this. Dialogue has to start. जितनी जल्दी कर लेंगे उतना उतना कम दर्द होगा, क्योंकि Hmm. पेशेंट, जैसा मुझे कहना है कि द हेल्थ ऑफ द पेशेंट इज नॉट गुड, इट इज वरीसम। थैंक सो मच डॉक्टर गुप्ते। और अगली बार मैं आपसे केवल कम्युनिटी हेल्थ पे भी कुछ बात करना चाहूंगा। वी विल टॉक नेक्स्ट वीक ऑन Sir, Anand ji, इस बात पे दैट। last what I just want to say, when you talk about प्लीज प्लीज। the relief came and then the day to day, जो उनका survival है, and when you talk about resilient, yeah, that resilient, even मुझे भी this time when I was in the field, I realized कि यहाँ पे हम लोग दिल्ली में बैठ के मीडिया के थ्रू या डिफरेंट प्लेटफॉर्म में हम बात कर रहे हैं, बट we are not living that experience. And waha ground in the field, yahan pe on the other hand you have people who are surviving in that relief camp, and on the other hand you have the general populations who are unaware. I mean, they are like surviving apna day to day work pe. People have no time for politics. And the tragedy of this is that जो रिलीफ केम में है, जिसको पॉलिटिक्स का पी तक पता नहीं, दे आर द विक्टिम। एंड व्हाट इज देयर फॉल्ट, बहुत सारे सवाल है, जवाब बहुत कम। और इन सब स्थिति में जब वार होता है, सिविल वार या कॉन्फ्लिक्ट, इसमें जो इनोसेंट है और जो कमजोर है, जो हमारे सोसाइटी के अंदर भी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक दिस थिंग्स, जो कमजोर है वही सफर करते हैं। तो ये लोग इतना वल्नरेबल है, इनका जो डबल मार्जिनलाइजेशन होता है इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन। जो मजबूत है वो
निकल जाते हैं वहां से और अपना आगे बढ़ के दे हैव दैट कैपिटल, सोशल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल। यहाँ पे ये लोग उनके पास ना सोशल कैपिटल है ना इकोनॉमिक कैपिटल है। तो इस स्थिति में जब आपका वहां पे अभी राइट नाउ गवर्नमेंट तो है ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, फंड्स भी नहीं है, लोगों के पास जो सैलरीड है, पेंशनर है और गवर्नमेंट का जो सैलरी है, जो वो आ रहे हैं वही आ रहे। So it's very challenging and it's high time. Through your platform, I want to address that it's high time that at least on humanitarian ground, at least healing touch shuru hona chahiye. The present government, this present dispensation, jo double sarkar hai, inko they should move. They should start a baby step in gaining their trust and to have their faith again as a process of healing. अब हम आगे क्या होगा हम नहीं कह सकते, पर अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें अगर आप एटलीस्ट इन एक्शन, नॉट ओनली इन वर्ड्स, इन एक्शन एक कोई ऐसे कदम उठाइए, एक जो भी है एक्शन ओरिएंटेड, जिसमें फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल फैसिलिटी वहाँ अच्छा सा प्रोवाइड कीजिए, या आप उस हिल डिस्ट्रिक्ट एरिया का हिल कैंपस, मणिपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आप हिल डिस्ट्रिक्ट में हिल कैंपस बनाइए, है ना। और जो स्कूल्स, जो सीबीएसई बोर्ड जो जिसका मणिपुर स्टेट बोर्ड के अंदर आप नहीं हो पा रहा है, उनको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में एफिलिएट कीजिए। पॉलिटिकल सॉल्यूशन अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा, बट प्लीज नीड टू हैव ए पब्लिक मैंडेट टू रिपोज देयर फेथ इन द गवर्नमेंट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ। जी जरूर। थैंक यू सो मच डॉक्टर गोइते फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।